Our next panel discussion is a topic that's a bone of contention for all salon owners. जैसे कि अभी वाले पैनल में भी डिस्कस हुआ, स्टाफ उन्हें कैसे हायर करना है, उन्हें कैसे ट्रेन करना है और कैसे रिटेन करना है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सैलून ओनर्स के लिए. और वी आर गोइंग टू टेक दिस बुल बाय इट्स हॉर्न्स इन आवर नेक्स्ट सेशन, which is on talent hunt, how to retain and train a high performing team. We discuss the various aspects of finding the right staff and retaining them. Our panel comprises of Mr. Pravesh Dudani, founder and chancellor, Medhavi Skills University. Can I have Mr. Pravesh on the stage, please? My next speaker is Ms. Raman Chauhan, founder, Victress Beauty Lounge and Academy. If Raman is already in the room, can you please step on the dais? Please. My next speaker is Ms. Sangeeta Jain, Campus Director, Delhi Skills and Entrepreneurship University. Welcome, ma'am. Thank you so much for joining us. I would like to invite on stage Ms. Sangeeta Chauhan, President, All India Hair and Beauty Association, AIBA. Hello, Sangeeta ma'am. Thank you so much for joining us. And finally, I would like to invite on stage Ms. Sneha Charan, co-founder, The Top Knot Salon and Academy. Sneha, can we please have you on stage? I once again request all the attendees to settle down as our panel is already on the stage and we are going to start. Raman, can I please have you on stage? I think you missed your name when I announced it, please. So before I start questioning our panel and give way to a healthy discussion on talent hunt, I would like to introduce the panel to you. Mr. Pravesh Dudani is an IIT Kharagpur and Stanford University alumni and brings 15 plus years of education and skills leadership experience into MSU. Under his leadership, Medhavi Skills University has emerged as a hub for innovative learning that focuses on skill development. Ms. Raman Chauhan is a successful entrepreneur and global instructor in semi-permanent and makeup application. With a passion for beauty and an eye for detail, Raman currently owns and manages 3 companies in the beauty vertical. She is dedicated to spreading learning and education in her field of work with zero compromise on quality and standards. Recipient of the OMC Lifetime Achievement Award 2022, Ms. Sangeeta Chauhan is a prominent figure in the Indian beauty industry. Under her leadership, the association AIBA aims to promote the growth and development of hair and beauty sector in India. With her extensive experience in the industry, she works closely with governmental bodies, industry experts, and beauty professionals alike. Our next speaker, Ms. Sangeeta Jain, is the campus director of Delhi Skills and Entrepreneurship University. As a seasoned educationist, she brings a wealth of experience in shaping the future of young minds. Under her leadership, the university focuses on providing students with industry-relevant skills, entrepreneurship training, and a strong foundation in various disciplines. And our final panelist for today is Ms. Sneha Charan. Her Instagram profile says all about her versatile personality in a nutshell. She's an entrepreneur, fashion stylist, branding and marketing expert, and co-founder of the Top Knot Salon and Academy, Lucknow. Thank you for joining us today, speakers. It's a great honor to have you here and to discuss a very important and relevant topic, which will always remain relevant for the beauty industry. हम ये डिस्कशन हिंदी में भी कर सकते हैं, so whichever way you are comfortable. Let us start with Sangeeta ma'am. As the president of AIBA, आप हमेशा ब्यूटी एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, तो आज के ज़माने में सही स्टाफ ढूंढना कितना चैलेंजिंग है? ऑल राइट, इसको मैं एग्जाम्पल से जवाब देना चाहूँगी. आपने रेस्टोरेंट बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा एम्बियंस है, और खाना अच्छे से सर्व ही नहीं हुआ.
क्या आपका कस्टमर वापस आएगा? अगर आप बहुत लग्जरियस सैलून बना लें, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर लें, पर आपका जो डिलीवरी है, क्लाइंट क्या लेकर के जा रहा है? द सर्विस, एंड सर्विस रेंडर्ड बाय द पीपल, एंड पीपल हु आर द पीपल, दो शुड बी टोटली ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड. तो क्लाइंट एक्सपीरियंस लेके वापस जाता है. एम्बियंस नो डाउट वो इंजॉय करता है, सिस्टम सारा इंजॉय करता है, बट सर्विस वो लेके जाता है, और उस सर्विस में अगर कहीं कोई कमी है, देन ही वोंट कम बैक. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच थिंग? तो ये अगर रेस्टोरेंट की बात होगी, सेम हमारे सैलून में है. आप जितना मर्जी अच्छा सैलून बना ले, क्लाइंट का काम अगर एट पार नहीं हुआ, जो उसने मनी दिया वो नहीं हुआ, या अपडेटेड नहीं है, या ऐसा नहीं है कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो, या उसको उसकी सोच से ऊपर नहीं मिला, दे वोंट कम बैक. सो स्टाफ का नंबर 1 होना बहुत जरूरी है. बाकी सारी बातें तो सबसाइडल हैं. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो वही अब बात एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, हायर अपडेशन की, वो सब है. उसके बगैर बात नहीं बनेगी. तो स्टाफ का तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट होना जरूरी है. अब चूंकि सोशल मीडिया है, आप अपना काम करते हो और पब्लिकली दिखाते भी हो. सिर्फ क्लाइंट नहीं देख रहा होता, आपके अपने ऑपोनेंट्स देख रहे होते हैं आपका काम. उसमें अगर आप कहीं कुछ कमी कर रहे हो, ग्लव्स नहीं पहने, कुछ नहीं लगाया, तो दुनिया में जो आपके ओपोनेंट्स है वही देख देंगे कि आपने कैसा काम किया. यू आर नॉट ओनली इन सैलून, यू आर इन द एयर नाउ. सो बहुत स्मार्ट होना ही पड़ेगा, इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और शार्प होना ही पड़ेगा. दैट व्हाट आई. Right. Sneha, do you agree to her? Absolutely. We are in a service industry, and service industry is with the people. It is not just with the product. It is not just with the interiors. It is not just with the treatments that we are doing or the service that we are giving. The ultimate service givers are the staff that we have. So ultimately, they are the first touch that will either make a client or break a client for you. So that touch has to be magical. And that touch starts from the very first point of contact, which is your security guard outside. Okay. You know, the way he welcomes you, the way he greets you, the way he introduces the brand to you is the first point of contact. And I think if the recruitment of the first point of contact, which is a security guard, to the pantry boys, to the management desk, to the actual service givers, be it the therapists, the hairdressers, the makeup artists, I think if the hiring is, you know, to the point and apt from the step 1 to the end, I think we've done our job well. Okay. Raman, what do you think of the challenges in finding the ideal staff? So basically, I agree with everything you have said so far. And it's in a world where services Can you are, please hold the mic Is this closer? better? Yeah. In a world where services are at a huge abundance. Is this better? Good. Okay. So services are at huge abundance. There's so many hairdressers, so many nail artists, lash artists, semi-permanent makeup artists. It's how we can engage our client with our services and our personality to have them coming back over and over and over. I think that's the hardest part, is finding employees that can engage our clients and then they don't want to go anywhere else. It's like finding your doctor, finding your GP. Once you found your GP, you will not go anywhere because that GP understands you, knows your whole family, how many kids you have, what your life structure is. And almost as a service provider, you need to become that. So when they have an option of going somewhere else because of pricing or availability or location, they will not go because they've made such deep connections with the service provider. So you can be immaculate at hair, at semi-permanent makeup, at nails, anything. But if you cannot connect with your clients anymore, that's a lost client. Right. Sangeeta ji, coming to you, आप ट्रेनिंग में हैं और आपके लिए आप जो आपके स्टूडेंट्स जैसे पास आउट होते हैं वो सैलून्स में जाकर इनके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फाइंडिंग द राइट टैलेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक कम्युनिकेशन. कोई भी सेक्टर में जब हमारे बच्चे जब काम के लिए निकलते हैं तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको समझ के उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना
सी स्किल होना अपने आप में एक चीज़ है, वो तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट क्लाइंट की जो नीड्स हैं उसको समझना और उसको राइट सेंस में कम्युनिकेट करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप उनके पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएं, जस्ट बाय टॉकिंग टू देम आपको लगता है कि हाफ द प्रॉब्लम इज डन। तो इसी तरह से हम लोगों का जो सेक्टर है, ब्यूटी सेक्टर जो है, उसमें अगर आपका थेरेपिस्ट या जो हेयर ड्रेसर है, अगर वो आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है और वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के अकॉर्डिंगली आपको सर्विस सजेस्ट कर रहा है, तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब हम कोई भी आप लोग अगर थेरेपिस्ट चूज कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो स्किल के साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने कॉलेज में जब बच्चों को, एक्चुअली वी आर टीचिंग 12th पास स्टूडेंट्स और डिग्री प्रोग्राम दे रहे हैं हम ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव करो, बट उसके साथ साथ कम्युनिकेशन पे काम करो। बिना कम्युनिकेशन किए आप सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर है। Yes. I totally agree with ma'am's point here, and we actually face this problem on an everyday basis in our salon as well. You know, you might hire a very, very skilled hairdresser for an example, or maybe a very skilled makeup artist for an example, but when you're actually interacting with your client, you have to understand what the client wants in case of hair color or haircut or hairstyling or makeup. There are so many different options, and you have, you know, those trending names on Instagram, or you know, something which is really trending in market. For example, balayage hair color karana hai, or maybe ombre karana hai, or maybe eyebrow microblading karana hai, but आपके आर्टिस्ट को करना आता है, टेक्निकली करना आता है, बट बोलना नहीं आता है। क्लाइंट को ये समझाना नहीं आता है कि उनके फेस पे वो सूट करेगा कि नहीं करेगा, या उनके लिए कौन सा टोन बेटर है। सो जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो वो चाहे कितना अच्छा हेयर ड्रेसर क्यों ना हो, वो कभी क्लाइंट को अपने साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द पॉइंट वेयर इन, यू नो, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड, you know, teaching and, you know, training my staff on communication skills, because the teaching of this aspect, we've realized over time, is more important than any other aspect. इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, कम्युनिकेशन। एक, जैसे आपने आके मुझसे कहा कि मुझे नील्स कराने हैं और मैंने कर दिए, बट अगर मेरे को नेल की कंडीशन देख के ये लगता है कि इस क्लाइंट को एट दिस मोमेंट ये काम नहीं कराना चाहिए, तो राइट एजुकेशन देना क्लाइंट को भी हमारी ही ड्यूटी है। उसको ये बताना, सी अर्निंग के लिए बैठे हैं, दैट इज़ राइट, हम सैलून सर्विसेज में अर्न करना चाहते हैं, बट अगर आपको लगता है किसी एक पॉइंट पे कि मेरे क्लाइंट के लिए ये यूजफुल नहीं रहेगा या हार्मफुल होगा, तो आपको अपनी तरफ से उसको एजुकेट करना मस्ट है कि मैम आपके लिए एट दिस मोमेंट ये राइट नहीं है। क्लाइंट माने नहीं माने वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सैलून ओनर्स हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास से चला जाएगा क्लाइंट, तो वो कहीं और जाके ये सर्विस ले लेगा, तो हम क्यों अपना क्लाइंट छोड़े। दैट इज़ फाइन, मैं अग्री करती हूँ, बट तभी भी ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम क्लाइंट को बताएं कि दिस इज़ राइट फॉर यू और नॉट। क्योंकि अगर आप एक राइट सजेशन देते हैं तो क्लाइंट आपके पास से कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा वापस लौट के आपके पास ही आएगा। That's what I believe. Pravesh ji, what would you like to add to this? First of all, thank you very much, PPI and AIBA for inviting me here. Although as an individual, my indulgences with a salon is limited to hair grooming only, but as a university, as a skills university, beauty and wellness sector is very, very important. बहुत ही important sector है. And from Government of India, we have a very strong mandate to introduce courses for this sector. Now, if I answer this question, अगर मैं इस question discussion की बात करूँ,
टैलेंट डेवलपमेंट एंड जो रिक्वायरमेंट है सलॉन्स में, एक चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर है जो सलॉन चला रहा है, या वो एक एंट्री लेवल ब्यूटिशियन, थेरेपिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट है, सब कुछ एक स्किल से रिलेटेड है, हुनर से रिलेटेड है, राइट। हम उसको एसेस करते हैं कि उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, वो क्या अच्छा हेयर कट या वो पकड़ सकता है कि नहीं, कि अच्छे ब्यूटी एप्लीकेशंस हो सके, या उसकी सॉफ्ट स्किल्स पे है कि कितना अच्छा वो कन्विंस कर सकता है एक क्लाइंट को, अपसेल कर सकता है, या एक रिलेशनशिप बना सकता है ताकि वो दोबारा आए। ये सारी चीज़ें एक स्किल से रिलेटेड है, चाहे सॉफ्ट स्किल है चाहे हार्ड स्किल्स है। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये इंडस्ट्री टू माई नॉलेज वर्क्स ऑन अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड वे इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग एंड क्वालिफिकेशंस। आज हम अगर देखें तो बच्चे कैंडिडेट्स उसको देख के सीखते हैं, किसी के अंदर एज एन अप्रेंटिस जो होता है, एक तरह से फॉर्मल इंटर्नशिप करके सीखते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। बट और किसी को सैलून खोलना है तो हायरिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी दूसरे सैलून से उठा लें, पोच कर लें। बट अभी ज़रूरत क्या है कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना स्किल्स को, और एक हर अच्छे एकेडमी, आई मीन सैलून ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को एकेडमी मोड में चलाना, कि भाई आपको जो एंट्री लेवल लोग आ रहे हैं जो इस लाइन में घुसना चाहते हैं, उनको आप ट्रेन भी करें ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ employing those people is low, they have a better prospect कि वो आज आगे बढ़ सके, और कहीं ना कहीं उनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन मिल सके, इन अ वे स्किल क्वालिफिकेशन मिल सके या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल सके ताकि वो आगे बढ़ सके। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरे हायर एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन इकोसिस्टम को पूरा ओवरऑल कर दिया है। हमें हमेशा से ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि लर्निंग एक क्लासरूम में होती है, कि भाई आपको एक डिग्री एजुकेशन लेनी है तो आप जाके कहीं पढ़ेंगे, आपको डिग्री मिलेगी, फिर आप कहीं काम स्टार्ट करेंगे। बट अब ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है कि लर्निंग कहीं पे भी हो सकती है, इवन ऑन द जॉब हो सकती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ एन हायर एजुकेशन प्रोग्राम और स्किल एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आप काम करते आ रहे हैं, आप अगर 5 साल 10 साल काम कर रहे हैं और आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप 12th पास हैं, तो क्या आपको डिग्री लेने के लिए 3 साल पढ़ना पड़ेगा? नहीं। अब वो प्रोविजन आ गए कि आप 1 साल में भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका वो वर्क एक्सपीरियंस काम आएगा आपके लिए। सो ये एक रेडिकल चेंजेस आ रही हैं सिस्टम में, जो पूरा एक टैलेंट पाइपलाइन को हम जो ग्रूम करते हैं, समझते हैं, वो पूरा चेंज होने वाला है। तो अगर तो मेरा यही रिक्वेस्ट है पूरे इस इकोसिस्टम में। अभी आई सी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस्ड सैलून ओनर्स, आई वाज टोल्ड कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि हर एक एंटरप्रेन्योर, सैलून एंटरप्रेन्योर के लेवल पे उनको उस लेवल पे सोचना है कि वो ट्रेनिंग एकेडमीज, ट्रेनिंग सिस्टम्स, प्रोसेसेस कैसे डेवलप कर रहे हैं। वो ही एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ ग्रोथ है, जो एक ग्रोथ इंजन को फ्यूल करेगा। आप एक सैलून से दूसरे सैलून पे जा सकते हैं, और जो लोगों के आपने वैल्यू डाली, आप एंट्री लेवल लोगों की लाइफ में अगर आप वैल्यू डाल रहे हैं थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्रू एनी सर्टिफिकेशंस, सो वो आपको छोड़ के भी नहीं जाएंगे और आपके साथ स्टिक करेंगे। So these are the few points I wanted to add. Thank you, sir. Absolutely, because I 110% agree to his point. This is one reason we started our academy in Lucknow. So we are in a developing city. We are not as developed as Delhi is. And there, the opportunities of courses in terms of skin, makeup, hair are very limited. And also in the nearby places of Lucknow, where people end up looking for options in the nearby bigger towns. They don't want to go to expensive places like Delhi, Bombay to learn these skills. So I think having our own academy wherein we can inculcate our own ideology, our own values to people who are learning with us, and then hiring them at a nominal cost, that will help us in saving cost also, and also getting some loyalty from them. Because they will have that kind of belongingness that we have learned from this institute and we are serving this institute alongside. So that is one way of creating skills, as you asked for, and also help them retain with us. Right. Raman, coming to you, you work in a niche, semi-permanent makeup. So how do you create a funnel where your students not only get opportunities, but the salons or beauty clinics
also benefit from the lineup of talent that you are creating? Amazing question. So basically, with semi-permanent makeup, anyone that comes through our academy, a lot of them become freelancers. Yeah. Okay. So we can retain some within our Victor's Beauty salon. That's easy, and we hire them as interns, apprentice. So whether it's in Mumbai or Delhi, so we just hire them as apprentices. However, we have many salons that do contact us because they don't want to. They do not want to spend the money on the education itself. However, they want to hire freelancers that they can share the commission with. So then we can get them in touch with the freelancers. So that's how we work in terms of individuals coming through our training, and depending on where everyone sits with their skill set. So they come to us for the knowledge. We can provide the knowledge. We can get them prepped for the skill. However, each artist needs to practice to make sure their skill gets better and better. And most of our team are educators, keep in touch with the students to ensure their skill levels are growing. And as they're growing, we can then recommend them to other salons as freelancers. So you also provide upskilling and advanced courses. Yes. So we start off with basic classes, and as they progress and their skill level is getting better, they can come back and learn numerous other ways of doing semi-permanent makeup for more natural eyebrows, natural lips, or bold brows, bold lips, because it all falls into very many categories. However, over a 9-day period, you can't learn it all because you need to go back to your home and start practicing, touching skin. Every single time you touch a new set of eyebrows, new set of lips, or liner, every case is so unique. Every time you neutralize a lip, no one client is the same. Every pigment, it's similar to hair. You're correcting hair. The color theory and the science is so intensive until you don't do 50 to 100 set of faces, you are still learning. Right. That's a very important point. The more you learn, the more you practice, you see the variety of faces and skin tones. That's when you will really master. I agree. Yeah. And skin is so different. Skin's dry, normal, oily combination, mature skin, young skin. Every person you touch is going to be very different. Right. Coming to you, Sangeeta ma'am, ये question मैं आप तीनों के लिए pose करूँगी, starting with you. अभी तक जितना discussion हुआ है, we have listed out lot of qualities that we want in our staff. जैसे आपने भी शुरू में कहा कि they have to be smart, they have to be well versed in their own skill. तो क्या ऐसे सर्वगुण संपन्न ट्रेनीज है? क्या हमारे पास उस तरह का पाइपलाइन है कि जिस तरह से ब्यूटी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्या हमारे पास वैसी पाइपलाइन है? अभी हमारी इंडस्ट्री कैसे चल रही है कि मुझे आता है, मैंने सिखाया, इन्हें आता है, इन्होंने सिखाया, उन्हें आता, उन्होंने सिखाया. तो हमारी सबकी अपनी थ्योरी है, सबका अपना प्रैक्टिकल है, और सब तरह की प्रैक्टिकल चल रहा है. मैंने सिखाया हेयर बोटॉक्स, इन्होंने सिखाया, इन्होंने सिखाया, बट डिफरेंट. सिलेबस एक नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं ट्रेनर बनने लायक हूँ, क्या मैं ट्रेनिंग अच्छी कर सकता हूँ, ये सब जाने बगैर हम सिखाए चले जाएं. तो सबसे पहले जो आप ये कह रहे हैं कि क्या हम इस लायक हैं, तो इसको थोड़ा सा और जानने के लिए एक फॉर्मेट में आना पड़ेगा. MBBS डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक फॉर्मेट है. अभी परेश जी ने कहा कि एक ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा. हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसे टटोल के चलती, हम ऐसे ही चले हैं. जब हमने स्टार्टिंग किया था, पहली बार जब मैं कलर की एक ट्यूब लाई थी, वो 6 महीने तक खत्म ही नहीं हुई थी. एक ट्यूब शुरू में एक क्रायलॉन की पैलेट ली थी, कब तक चली वो, और बड़ी मुश्किल से मिली थी क्योंकि मिलता ही नहीं था सामान, बॉम्बे भी नहीं मिलता था. वो जमाना और आज का जमाना, आज कंपनीज हैं. ठीक, अब एक जंप लेना होगा हमारी इंडस्ट्री को. व्हाट आई थिंक ऑफ कि क्या हमें अभी बस उसी पैटर्न पे चलना है या कुछ नया, कुछ बढ़ के करना है? क्या जो मेरे पास सर्टिफिकेट है या डिग्री डिप्लोमा है, क्या मैं उसको दिखा के कहीं इंटरनेशनली अपने आप को कह सकती हूँ कि क्या मैं उतनी ट्रेंड हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाहर जाऊं,
और यूएस जाऊं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि संगीता चौहान हैज डन 37 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी का दिया, और मैं यहाँ अपना काम करना शुरू करती हूँ, तो क्या मुझे अमेरिका अलाउ करेगा? नो, आई विल बी स्टार्टेड एज ए जीरो. एंड दिस इज द रियली एग्जाम्पल व्हाट एलिशा हैज सीन देयर, डूइंग ऑल द कोर्सेज इन इंडिया. आप जान सकते हैं वर्ल्ड स्किल बनाने वाली अलीशा, और सब चीजों को फॉर्मेट करने वाले हमने ब्यूटी एंड वेलनेस में सिलेबस तक बना के हमने दिए. आज अगर हम चाहें बाहर के लिए तो वहां डिग्री रिक्वायर्ड है. तो मेरी इंडस्ट्री को भी सोचना होगा, क्या ऐसे ही चलना है या हमें इस फॉर्मेट को बढ़ाना होगा. मेरी पूरी इंडस्ट्री सोचेगी. आज एक इंजीनियर और डॉक्टर को बाहर भी जाता है तो बहुत अच्छी सी सैलरी मिलती है. हम आज भी अंडरपेड है, हम आज भी अंडरकट है. तो उसके लिए मेरे सारे सैलून्स को और सैलून में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग बनने के लिए पहले डिग्री की तरफ आना होगा. आप एक डिग्री प्रोसेस में चलें. सबसे पहली बात, जैसे आप डिग्री प्रोसेस में आए आप टोटली ऑर्गेनाइज्ड हो गए. आप गवर्नमेंट की नजर में ऑर्गेनाइज्ड है अब, कि अगर आपने ग्रेजुएशन इन मेकअप किया है, यू आर ऑथेंटिकेटेड टू स्टार्ट मेकअप इन अमेरिका ऑल्सो, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग योर डिग्री देयर. तो वहां होकर भी आप अपने आप को आगे से शुरू कर सकते हैं. तो सबसे पहले मेरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि अब हमें जंप तो लेना पड़ेगा. अब हमारा 12th क्लास पास से काम नहीं होगा, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा हेयर एंड ब्यूटी. ये एक बात. दूसरी बात, ट्रेनर एक प्रोसेस है जो भी सर बता रहे थे कि किस तरह से हम इंडस्ट्री में रह के 3 साल की पढ़ाई करना आसान नहीं है. तो क्यों ना इसमें हम एज ए ट्रेनर बनते हुए कि हम ट्रेनर भी बन जाए और हमारे पास डिग्री भी आ जाए, ये दोनों प्रोसेस हम साथ कर ले. दैट इज द बेस्ट ब्यूटिफिकेशन व्हाट मेधावी इज डूइंग, कि हर एक सैलून ओनर, हर एक एकेडमी ओनर, अगर वो ट्रेनर की एजुकेशन लेता है, लेवल 1 करता है तो फर्स्ट ईयर हो जाता है, लेवल 2 करता है तो सेकंड ईयर हो जाता है, थर्ड ईयर वो पूरा करके एक तरफ उसको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है और वो ट्रेनर भी बनता है. और दो ट्रेनर, आज बहुत सारे लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एकेडमी बनाने के लिए, पर उनके पास ट्रेनर नहीं है. तो उस ट्रेनिंग के लिए मेरी जितनी भी एग्जिस्टिंग सैलून ओनर है एकेडमी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अब डिग्री के प्रोसेस में आ जाइए. और पहले खुद मुझे आना होगा. सबसे पहले एडमिशन संगीता चौहान का होगा यूनिवर्सिटी में. मुझे डिग्री चाहिए, मुझे चाहे मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, चाहे मैं डॉक्टर इन नेचुरोपैथ हूं, पर मैं हेयर एंड ब्यूटी में आज भी मेरे पास सिर्फ सबके सर्टिफिकेट्स हैं, दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे अचीवमेंट अवार्ड ले लिया, बट मैं डिग्री के प्रोसेस में आज भी जीरो हूं. और मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा. तो मुझे तो पीएचडी करनी है सर, और मुझे डॉक्टरेट चाहिए. मुझे तो सीधा पीएचडी करनी है हेयर एंड ब्यूटी में. दैट इज माई प्रॉमिस टू मी. और ये मेरा नहीं, मेरी बहुत इंडस्ट्री खड़ी है कि क्यों हमें पद्मश्री ना मिले, क्यों हमें अवार्ड्स ना मिले. हम अपनी डिग्री दिखाएंगे तो हो नहीं सकता कि हम सबको अवार्डेड और डॉक्टरेट ना मिले. तो हमारी इंडस्ट्री को ये जुड़ना पड़ेगा. और यहाँ किसी की फाइट नहीं है, सबने पढ़ना है. सिर्फ मैं इससे काम नहीं चलेगा. अबे हम बनना पड़ेगा और हम के लिए पढ़ना भी पड़ेगा. ये मुझे कहना पड़ेगा. चाहे मैं सारा काम करती हूँ, हेयर, मेकअप, नेल, स्किन, वॉट एवर यू कॉल इट, आई एम मास्टर इन एवरीथिंग. 2001 में मैंने इतने जेंट्स के बाल लगाए कि मैं आपको बता नहीं सकती. 2001 की बात कर रही हूँ. थर्मोलिसिस किया, मेकअप किए, कलर ट्रॉफी उड़ाई लॉरेल की हेयर में, बॉलिया जी, सब कलर ट्रॉफी. ठीक है, अंबिका पिल्ले फर्स्ट थी तो मैं सेकंड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पर अब हमें एजुकेशन में आना पड़ेगा और इस इंडस्ट्री को हमें लेकर पढ़ना है. मुझे भी लेकर चलना है, इन्हें भी लेके चलना है, इन्हें भी लेके चलना. सिर्फ हम कंपटीशन ना करें काम के लिए, नहीं. जिस दिन आपके पास टीचर्स टीओटी होगा, आपके पास ग्रेजुएशन होगा, आपको यूनिवर्सिटी से कॉल आएंगी कि आप हमारे लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं हेयर एंड ब्यूटी में, यू विल बी कॉल्ड. और फिर उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी. तो आई थिंक हमें थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा, छोटा छोड़ना पड़ेगा. और मुझे कॉलेज, मैं समझती मेरे हेयर एंड ब्यूटी के प्रोफेसर आने चाहिए जो एक दिन आएंगे. तो इसलिए आई एम वेरी, मैंने आज से 11 साल 12 साल पहले आइबा सोची थी, लोग मजाक बनाते थे, ये देखो नेता चली है, ये देखो नेता बन रही है हेयर एंड ब्यूटी की. पर आज वही है कि आज आप निकलिए तो हेयर एंड ब्यूटी सब लोग जुड़े हैं. पर अब एजुकेशन में जंप तो लगाना पड़ेगा और सब मिलके लगाएंगे. बिल्कुल. केवल एक आदमी, शादी का खाना मैं अकेले नहीं खा सकती, सब खाएंगे. तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा और लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा. दैट आई फील. थैंक यू मैम, दैट वाज वेरी वेरी मोटिवेशनल. संगीता जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जो संगीता मैम कह रही हैं, मैं उसी को आगे कहूंगी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इस बारे में सोचा और दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी 2021 में, और 2021 से हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में पहले एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी के नाम से एक डिग्री प्रोग्राम चला रहे थे जो 3 साल का था, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि आपको 4 साल की डिग्री स्टार्ट करनी है। तो फ्रॉम दिस ईयर वॉट एवर एडमिशंस वी आर डूइंग फॉर 4 years। बट इसमें हमने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही एक रखा है कि अगर सपोज कोई बच्चा ऐसा आता है जो 1 साल के बाद इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहता है, वो 4 साल लगातार नहीं कर सकता फॉर वॉट एवर रीजन्स, फाइनेंशियल रीजन्स हो सकते हैं, फैमिली रीजन्स हो सकते हैं। तो 1 साल के बाद अगर बच्चा बाहर निकलता है 2 सेमेस्टर्स करके, तो उसको यूनिवर्सिटी जो है 1 ईयर का सर्टिफिकेशन कोर्स देगी, 1 ईयर का सर्टिफिकेट देगी। 2 साल के बाद निकलता है तो डिप्लोमा, 3 साल के बाद निकलता है तो बीए, एंड 4 साल के बाद निकलता है तो ऑनर्स। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के क्रेडिट स्कीम है, जो मैम कह रहे थे कि हम यूएस में जाके काम नहीं कर सकते या कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देती है वो आपके मार्क्स बाहर कंट्रीज में आपके काउंट होते हैं। यू कैन वर्क देयर विद दिस डिग्री, एंड सेकेंडली इस डिग्री के बाद आप वहां जाकर फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं काउंटिंग दीज मार्क्स। हमारे बहुत बच्चे हैं जो कनाडा में सेटल्ड हैं, जिन्होंने यहाँ से कोर्स करके गए, 3 साल का डिप्लोमा, पहले डिप्लोमा करके गए और वहाँ जाकर उन्होंने हायर एजुकेशन में अपने आप को एनरोल करा। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन सैलून्स आल्सो। कुछ बच्चे हैं जो अभी एस्थेटिक इंडस्ट्री में लंदन में काम कर रहे हैं, जो यहाँ से डिप्लोमा लेके गए थे 3 साल का, और उनको वहाँ काउंट किया गया। और डेफिनेटली अब तो डिग्री है तो वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन दैट। जो मैम कह रहे हैं कि हमको सारी इंडस्ट्री को साथ होना पड़ेगा, तो उसमें मेरा एक सिर्फ इनपुट ये है कि जो कोर्स करिकुलम है उस पे हमें काम करना पड़ेगा। जो छोटे सैलून्स, आई एम नॉट सेइंग छोटा इन द छोटा, इंडिविजुअल सैलून्स हैं, उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा खाली प्रैक्टिकल सीखता है, थियोरेटिकल पार्ट नहीं होता, तो उसको जो वो काम कर रहा है उसको ये पता है कि ये बॉटल उठा के मुझे यहाँ रखनी है, पर इसके पीछे क्या रीजन है उसको वो नहीं पता। तो कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो बच्चा ब्लैंक हो जाता है कि मुझे नहीं पता कि स्किन में अगर कोई इशू आ गया मेरा फेशियल करते टाइम, या कोई मैंने गैल्वेनिक मशीन यूज करी और क्लाइंट ने मुझसे पूछ लिया कि आपने पहले दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करा था, आप दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करा, 2 अलग इलेक्ट्रोड क्यों यूज कर रहे हैं? तो दे डोंट नो। उनको यही सिखाया गया कि पहले आपने डिसइंक्रस्टेशन करना है, फिर आयनाइजेशन करना है, बट क्यों करना है ये नहीं पता। तो थ्योरेटिकल नॉलेज देना भी बच्चे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको एक फिक्स करिकुलम की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर करिकुलम की रिक्वायरमेंट है जो हम सब मिलके बनाए। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, खाली नॉट ओनली इंडिया, जो वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्री में चल रहा है, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल करने से काम नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा लकूना है। हमारे बच्चे जब इंडस्ट्री में जाते हैं ना मैम, तो बच्चे कहते हैं मैम आपने जो सिखाया ना उसको तो कोई पूछता ही नहीं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। और आपके जो मसाज के स्टेप्स हैं वो बहुत फेदर लाइट हैं, और इंडस्ट्री में तो लोगों को बहुत हार्श मसाज चाहिए। ऐसे हम जो आपको सिखा रहे हैं, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो सिखा रहे हैं, क्योंकि वो साइंटिफिकली राइट है। बट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने आप को अपस्किल कर लो भाई। जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री अगर ये कहती है कि नहीं हमको, तो क्लाइंट ये कहता है कि हमें तो बहुत हार्श मसाज चाहिए, ऑल्दो दैट इज नॉट गुड, बट आपको क्योंकि अर्निंग के लिए आप निकले हो, आपको वो सीखना पड़ेगा। बट मैम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, तो हमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करिकुलम्स को एक ही जैसा डेवलप करना पड़ेगा, वो चाहे संगीता मैडम की अकेडमी में चल रहा हो, या मेरी यूनिवर्सिटी में चल रहा हो, या सर की यूनिवर्सिटी में चल रहा हो, कहीं पे भी चल रहा हो। या कल को मैम आप अपना अकेडमी स्टार्ट करते हैं और से सपोज हम एक फंडामेंटल स्किन केयर का एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप भी वही पढ़ाएं, मैं भी वही पढ़ाऊं, तो उसमें एक जो भी इंडस्ट्री में क्लास तैयार होगी ना, वो सिमिलर तैयार हो। उसमें ये नहीं होगा कि आपने कुछ और सिखाया, तरीका हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो हम लोगों का, बट बेस बच्चों का एक जैसा बने। दैट इज आई थिंक राइट।
नो आई completely agree. ये बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने बोला कि करिकुलम स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्यों, ताकि उस सर्टिफिकेशन जो कर रहा है, वो जो स्टैंडर्ड के लेवल पे आ रहा है, वो बराबर प्लेटफॉर्म पे रहे, ताकि टैलेंट हायरिंग में इजी रहे कि भाई अगर ये सर्टिफाइड है एट लेवल 1 तो उनको ये स्किल्स आती होंगी. सिमिलरली करिकुलम डिज़ाइन में इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का बहुत रिक्वायरमेंट है. आज मैम इतना एक्सपीरियंस्ड है इन सलोन, इन हाई टेक्नोलॉजी अप्रोचेस हो रहे हैं, तो क्या वो करिकुलम का पार्ट हो सकता है? सो वी कैन रीच आउट टू you all and understand what are the best practices in the industry and then make it part of the curriculum, right? What are the new technologies which is coming? And coming to the international aspect, now there is a provision that, you know, there are very standardized curriculums available across the world which can be mapped to the Indian curriculums, so that when we as a university certify, we can also say that this is also mapped to the skill requirements of, let's say, US based awarding body, right? So tomorrow with that certification or that qualification, where we will mention as a university that it is mapped to that international qualification, it will be very easy pathway, right? So those options, those flexibilities are available. So overall the system now, it's very, very flexible, it's very industry relevant. Yeah. It caters to the demand of the industry, which is, you know, practical skilling, practical approaches as part of the training and curriculum. And now that practical training, चाहे वो सैलॉन के अंदर हो रही हो, चाहे वो किसी के अंडर सीख रहा है, वो सारा कुछ टाइम और लर्निंग कैन बी accrued and accumulated for higher education qualifications like a diploma or a degree. So that is the overall concept. So with this is the real opportunity for this industry to take things forward. Right, sir. Thank you. Sneha, I have one question for you. अभी तक हमने सुना कि हम टैलेंट को कैसे ग्रूम कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं एजुकेशन में, बट एज अ सैलून ओनर व्हेन यू ट्राई टू हायर समबडी, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग इन दैट पर्सन? Will you prefer a degree, or will you be okay with any certificate that a person might come with along with experience? Okay, so if we think of the current scenario, this industry is really unorganized, as ma'am said. So we really need to organize it first and then ask for degrees. So currently, if we see the skill set is there. They have learned from academies across India or maybe online, but they are not technically educated. They might have experiences also of working in, startup salons, bigger salons for years, but their theoretical knowledge, as ma'am mentioned, is still very weak. And I see that in my senior most hairdressers also. I see that in my senior most makeup artists also. So I think the first step, if we need to focus on degrees as such, is to organize the sector first, and then expect that kind of skill set with degrees from the people that we want to hire. And if we can provide them that platform, then why not? If that is the future, then why not? But currently, as of now, we see both. We see a bit of education, experience, and the values that person has. Whether he's willing to work with you, adapt to your work culture, and he's able to gel with people around and take care of the clients as of now. Right. So yes. एज ऑन हायरिंग आजकल जो भी बात है, व्हाट आई फील वेरी, बहुत छोटी सी बात. इफ यू गो टू श्रीलंका, देयर इज अ रूल. इफ यू ओपन ए सैलून, दे हैव अ लेवल 4. दे शुड बी ऑल सैलून ओनर्स हु कैन ओपन सैलून, उनके पास ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेवल 4 होना चाहिए. और जिसने जॉब करनी है उसके पास लेवल 1 होना चाहिए. ऐसा एक छोटी सी कंट्री प्लान कर सकती है. मेरी अभी कंट्री में वो चीज़ है ही नहीं. जब ये चीज आएगी, हमें बात ग्रास रूट पे करना है. व्हाट आई, इफ वी स्टार्ट डिग्रीज फॉर द टीओटी पर्पस, ट्रेनर्स तो कम से कम पहले ग्रेजुएट हो, उसके बाद हम स्टाफ की डिमांड करें. आर यू गेटिंग मी? Yes. सो अभी मे बी लास्ट ईयर इन चेन्नई, द हिंदूज न्यूज़पेपर हैज अनाउंस्ड पब्लिकली कि सैलून ओनर्स
और जो भी सलोन चला रहे हैं उनको ये लाइसेंस होना पड़ेगा. ये नहीं, रजिस्ट्रेशन होना एक अलग है. आप अपने सलोन का रजिस्ट्रेशन करा लो अलग. नो, द एजुकेशन पार्ट, इट वाज इन हिंदू न्यूज़पेपर, और उसमें था कि जो जॉब करने वाला है उसके पास भी सर्टेन लेवल का होना चाहिए. इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर एन इंडस्ट्री. अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं. देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ चेन ऑफ सलोन्स, बड़े बड़े सलोन्स थे. वी कम टुगेदर एंड आईबा बिकेम द पार्टनर टू देम. देन वी कॉन्टेक्ट द मिनिस्टर कि अगर आप आज ये बात शुरू करते हो, अभी हमारे पास डिग्रीज और ऐसे कुछ यूनिफॉर्म्ड नहीं है. हमने बोला कि करिकुलम में एक नहीं है, तो अगर हम उस तरफ चलें और उसके बाद हम लाइसेंसिंग की तरफ चलें, देन थिंक. So step by लाइसेंसिंग step के लिए जी हमारा करिकुलम में एक होना जरूरी है और डिग्रीज आनी जरूरी, तब हम कह सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Are we talking of degrees just for the employees or for being a salon owner as well? Because, currently I see that people think it's a very lucrative industry. You have a lot of profit margin. So whosoever has the surplus, invest in it. Yeah. So that is where the competition is actually not benefiting the industry, but destroying the industry. So, because the owners are just working as investors, they are not working as the owners of responsibility. So I think we have to educate the owners as well, not just the people who are working into it, but the people who are running the show. Because ultimately the policies, the rules, the culture is what you inculcate, not just by investing money into it. No, Yes, sir. I just want to add, and this is a very, very important point. That the sense of responsibility which needs to be there from the salon owners is very, very critical. If you look at, I'll draw a parallel to other industries. अगर हम construction industry की बात करें, वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी कर दिया है कि हर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उनके सर्टेन परसेंटेज ऑफ वर्कर्स को आपको स्किल इंडिया सर्टिफाई कराना ही पड़ेगा, वरना आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे. सिमिलरली आप फूड इंडस्ट्री में देखें, फसाई लाइसेंस, और अब दैट मैंडेटरी एस्पेक्ट इज देयर कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पर है वहाँ पर स्किल सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी. Similarly, beauty wellness sector is something which is so important. If you see, it deals with the human body, it deals with the human skin, and at certain level, the onus is on those entrepreneurs, the salon owners, कि आप वो एक quality hygiene and that aspect of taking care of the body and health is very, very critical. And it is writing on the wall that those licensing aspects will come in the picture. It is just because there are important other areas which government is focusing on. They are not focusing here, but it is writing on the wall at the pace at which this industry is growing, at the pace where, let's say, I'm not very much deep into this, but I keep on hearing that formulations may, chemicals which are used, उसमें बहुत सारी इश्यूज हो रहे हैं, क्वालिटी का इश्यूज आ रहा है. सो धीरे धीरे करके ये रेगुलराइज होगा. दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू रेगुलराइज, एंड द पीपल हु आर टेकिंग एन अप्रोच ऑफ सर्टिफाइंग पीपल, upgrading their skills to basically adopt new technologies, new formulations, talent development, वो आगे निकल जाएंगे, right? So this is the point. Yes, Raman. So I have a business in India, but I'm also a Canadian who owns beauty lounges in Canada. So that's a big difference I find there and here. There, skin in the game means a little bit different. There are no big investors. You as an owner are the educator and you know your niche. If I do semi-permanent makeup, I know it inside out. So that's the true skin in the game for me. Here in India, the culture is very different. Investors are the money. They're the skin in the game. That's just very short-sighted. If we want to have a long-term business view, the owners also have to have skin in the game in terms of education, truly understanding what they are doing, what chemicals they are using, the compensation of the chemical, and what happens when you use this color on this type of skin.
The owners really need to understand that, or else it's very short-sighted. Businesses come and go, I find, in India very quickly for that reason, because it's a trend, or we can make quick money in this industry for the next 5 to 7 years, because they don't care what 10 years will look like. They don't care what 15 or 20 years will look like. So even as an owner, I definitely agree. Like, skin in the game is more than just money. It's education. एक चीज बोलती हूँ, जैसे कोई भी केमिस्ट शॉप खोलने के लिए फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना मस्ट है. बिना उसके आप केमिस्ट शॉप नहीं खोल सकते. डिप्लोमा और डिग्री दोनों, मतलब दोनों में से कुछ भी एक होना जरूरी है. 2 years डिप्लोमा एंड डिग्री, इट्स मस्ट, मैंडेटरी है, वो होना चाहिए. इसी तरह 1 मिनट, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा. इसी तरह से हम लोग जैसे सलोन्स हैं, वो खोलने के लिए भी कोई एक सर्टिफिकेशन होना जरूरी है. जो भी ओनर्स हैं उनके पास कुछ भी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है. वो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करने चाहिए. जो मैम ने बात बोली ना, वो बहुत बहुत जायज़ है कि मेरे पास पैसा है, मैंने लगा दिया, बहुत फैंसी सा सलोन कर दिया, बट मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता. तो जब मैं अपने स्टाफ को ट्रीट करती हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करती, मैं स्टाफ को भी प्रॉपरली ट्रीट नहीं करती. आई नो समबडी, उन्होंने बहुत लैविश सलोन स्टार्ट करा, बहुत अच्छा स्टाफ उनके लिए अपॉइंट भी किया गया सलोन में, बट क्योंकि वो इस इंडस्ट्री की नहीं थी, तो सारा दिन सलोन की लाइट्स बंद रखती थी कि एसी पे खर्चा नहीं होगा. जब कोई क्लाइंट आएगा तभी हम एसी ऑन करेंगे. वो अपने स्टाफ को सलोन में पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी अलाउ नहीं करती कि आप थ्रेड करोगे तो आप पेमेंट करोगे. तो धीरे धीरे करके स्टाफ ने, जो अच्छा स्टाफ था, वो छोड़ के चला गया, एंड फाइनली वो सलोन शट डाउन हो गया. क्योंकि अगर आप मैं इस इंडस्ट्री की अगर होती ओनर, तो मुझे मालूम होता कि मेरे स्टाफ की ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लाइंट. तो इसलिए ये होना बहुत बहुत जरूरी है. All right. So with that, we wind up this session because lunch time is already here. जो एक इनका सवाल है, if you can pass on the mic. उससे पहले एक और बात कहना चाह रही हूँ. बहुत जल्दी गवर्नमेंट इज कमिंग विद द लाइसेंस. मैं आगाह कर रही हूँ, बिकॉज परेश जी लाइसेंसिंग बॉडी में जा चुके हैं. आई एम ऑल्सो देयर, और हम बहुत सारी इंडस्ट्री को जोड़ने वाले हैं अपने साथ. तो लाइसेंस आने ही वाला है एनी डे. मैंने भी आपको हिंदू की बात की, तमिलनाडु की, तो कभी भी कहीं से भी अब शुरू होगा, उससे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने चाहिए, पढ़ना चाहिए. अपने पास होगा तो हम उसको फाइट कर पाएंगे और प्रूव कर पाएंगे. कागज की लड़ाई कागज से होती है, बातों से, एक्सपीरियंस से नहीं होती. सो इसलिए हमें इक्विप्ड होना पड़ेगा और आगे लेकर चलना पड़ेगा सबके साथ. और उसका आंसर मैं दे सकती हूँ. क्या पूछ रहे थे आप बेटा? Ma'am, we were asking about how can we join you in this field? In this degree program? Yeah, like we have done diploma and degree. And आपने डिग्री after कर that- लिया? No, actually not. But after that, what would be the आप ना process? 737 स्टॉल पर आएंगे, आइबा के लोग हैं वहां, आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे क्या से क्या होगा. Ma'am, basically my question is that are you providing any training or something like that? ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन में डिग्री ट्रेनिंग ही है बेटा, सब ट्रेनिंग So, ही होगी, सब लोग ट्रेनिंग देने to के tell लिए you in बैठे a हैं. nutshell, यहाँ पैनल पे बैठे हर एक के सिस्टम अलग हैं ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन के, तो आपको इंडिविजुअली पता करना पड़ेगा. पर you are new to the industry, right? Yes. So she wants to know, how do I enter the industry? What's the first thing that she can do? Ma'am, basically we are from Beauty Advisors. We are doing a training from Tata Strive. So it provides us some information and training about the beauty Right, products and so- some more products. So brands. So you're also- working at a retail outlet as a No, Yeah, beauty we advisor. are- टाटा a स्ट्राइव इज अ learner. कंपनी. Yeah. वो ब्यूटी के छोटे छोटे कोर्सेज चलाती हैं. Yes, ma'am. लक्ष्मी नगर में आपका शायद ऑफिस है. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. मैं हमारे यहाँ का स्टूडेंट है जो आपकी शायद टीचर रही होंगी, सोनल है शायद. Sonam सोनम Chaudhary. मैम, वो हमारी स्टूडेंट हैं. तो टाटा स्ट्राइव जो कर रही है वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स कर रही है.
3 महीने की, 6 महीने की? Yes, ma'am. It is about to हाँ. 1.5 months. मालूम है बेटा मुझे. Yeah. आपको अगर इस इंडस्ट्री में प्रॉपरली एनरोल होना है तो आप गवर्नमेंट ने बहुत लेवल पे कोर्सेज चला रही है. ITI में भी ब्यूटी का कोर्स चलता है, देन स्किल यूनिवर्सिटी में भी चलता है, देन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में भी ब्यूटी का कोर्स चलता है. इट डिपेंड्स कि आप कहाँ एनरोल होना चाहते हैं, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं. और ये मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ. प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत, जैसे आइबा भी अपनी डिप्लोमास देते हैं, आई डोंट नो डिग्रीज भी आइबा नहीं देता. ओके, आइबा कुछ नहीं देता, पर हम देते हैं. दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है बेटा. Ma'am, I have a question. Do Yeah. you give affiliations to salons or academies who are into trainings in smaller cities? No, not as yet. But definitely we are planning that, क्योंकि मैम अभी तक जो एजुकेशन थी ही नहीं, फॉर्मल एजुकेशन थी ही नहीं, तो किसी के पास है भी नहीं. जो मैम ने बोला कि सर्टिफिकेशन चाहिएगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा कि किसी के पास अगर 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाए. जो सर ने बात बोली. Ma'am, basically, मैं Can we आपसे know ये your सवाल थोड़ा घुमा के पूछता हूँ. आप क्या करना चाहते हैं? जैसे आप टाटा स्ट्राइव का 1.5 महीने का कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? sir, actually, after this course also provide us placements. So, 2nd of July हमारा एग्ज़ाम भी है उसमें, और हम लोग एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही हमें हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह हम लोगों ने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, तो और सिलेक्शन भी लिया. हमारा जो टाटा स्ट्राइव में आने से पहले जो कॉन्फिडेंस था और आने के बाद जो कॉन्फिडेंस है, यू कैन सी एज वेल. सो वेरी गुड. ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो स्किल इंडिया के अंडर चल रहे हैं, वो Yeah. टाटा स्ट्राइव उन्हीं के थ्रू कर एंड रहा दिस है. इज अफोर्डेबल टू. बट अब क्या है कि थ्रू जब ये काम करने पहुंचेंगे किसी सलोन में, तो जो कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं विद आइबा, तो उनको सलोन में काम करते करते अपने एजुकेशन को कैसे फर्दर करना है. मान लीजिए सर्टिफिकेट लेके निकल रहे हैं, तो अब इनको डिप्लोमा में कैसे जाना है, फिर आगे चल के अगले 3 साल में वो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होंगे, ये पूरा पाथवे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं अभी. एंड दैट्स वाई आंसरिंग योर क्वेश्चन दैट द गुड सलोन ओनर्स विच हैव कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रेन पीपल right within their salon, we as a skills university will work with them, right? We'll empower them that you can train people like them who will start working with you as a trainee, as an intern, and also pursue a course, right? So that in that process they can ensure that they are growing as in their knowledge, in their skills. आपको एक अच्छा talent long term के लिए मिलेगा, right? So it's a win-win for an industry, for a student, right? We have one last question from Unnati ji. Yes. Can we have a mic here, please? So my question is to Mr. Shukla here. So आप लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता. I truly believe in so. Because I am a person who is bridging the gap between national and international education right now. So I am just taking that further. और मैं medical छोड़ के इस field में आई. I was doing MBBS from BHU. I love that to come in this field. तो आप समझ सकते हैं field बहुत खूबसूरत है. But जब कोई भी इसमें entrance लेना चाहेगा, education में जाना चाहेगा, या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स लेना चाहेगा, तो क्या उसके लिए हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम बनाया है? क्योंकि कई बार बेसिक भी लोगों को नहीं पता होता है, और जब तक वो बेसिक नहीं जानेंगे, if they are not able to give the entrance exam also, how we can think they can go further? क्योंकि वो डिग्री फिर वैसे कई फर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लोग घूमते हैं, कई फर्जी डॉक्टरी की डिग्री लेकर लोग घूमते हैं, वैसे ही हमारी डिग्री के भी मोल नहीं रहेगा. तो गवर्नमेंट इज रियली डूइंग गुड, और हमारा देश उन्नति की तरफ चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है इस समय. तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप जो ये कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, सजेशन भी समझ लीजिए, तो इसमें क्या आपने एंट्रेंस एग्जाम रखा है? और एक क्वेश्चन दैट इज फॉर रमन आल्सो, लाइक यू सेड कि यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर डूइंग परमानेंट मेकअप and all like that, but 98% permanent makeup people, they are doing freelancing. I think this is going to harm the industry for the salon people. Do you think so? Or they should create space for the people those who are doing a permanent makeup. One question for you and one for you, sir. Thank you so much. So
दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू नो एक चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज़ हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स फ्लोट करती है एक पर्टिकुलर कोर्स ट्रैक में एंड वी इंश्योर दैट विदाउट एंट्रेंस वी आर नॉट टेकिंग एडमिशन. एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी दो एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन बिना क्लास 12 के स्टार्ट नहीं हो सकता है, राइट? तो वो एक एलिजिबिलिटी चेक होती है. फिर एक कॉम्पिटेंसी चेक होती है कि भाई आप उस कोर्स के लिए एटलीस्ट बेसिक एप्टीट्यूड और बेसिक इंटरेस्ट आपको है कि नहीं. एंड वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक प्री प्रोफाइलिंग होती है बिफोर वन गेट्स इनटू अ प्रोग्राम, राइट? सो वी इंश्योर दैट. एंड ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जैसे मान लीजिए कि सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होती हैं नॉर्मल प्रोग्राम्स में, वो आप एग्जाम दिए आपको ग्रेड मिले. इसमें ऑलमोस्ट 50% ओनस इज अबाउट प्रैक्टिकल स्किलिंग जो एक सलोन के अंदर सीखता है कैंडिडेट, राइट? वो हम एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर भी नहीं बहुत अच्छे से सिखा सकते जितना मे बी इनके सलोन में वो कैंडिडेट सीखेगा. तो क्या right? इस तरह की चीज अंधे की रेवड़ी तो नहीं हो जाएगा कि हम वही सलोन सेलेक्ट करेंगे जो हमारे फेवरेट है, जहां वो जाकर नहीं, के नहीं, 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 ट्रेनिंग्स नहीं, लेंगे? देखिए क्या होता है कि फेवरेट वाली बात नहीं है. इट इज अबाउट व्हाट एक्सीलेंस एंड व्हाट इंटेंट विद विच यू आर रनिंग दैट एकेडमी, राइट? आज बहुत अच्छी एकेडमीज हैं जिन पे वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में भी बच्चे निकल के जाते हैं, राइट? एंड वो एकेडमीज ने अपना नाम इसलिए बनाया क्योंकि वहां से बच्चे निकल के वर्ल्ड फोरम में कम्पीट कर रहे हैं, राइट? सो आज एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ स्किल्स यूनिवर्सिटी विच इज अ फोकस इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर की टैलेंट डेवलपमेंट में हमारा फोकस है. और वो हम जानते हैं कि हम एक अपने कैंपस में नहीं कर सकते उस चीज को. अगर हमें पूरे नेशन वाइड इस सेक्टर को इनेबल करना है तो वी आर डिपेंडेंट ऑन entrepreneurs and visionaries who want to develop academies in one particular sector and create excellence. So आज हम हमारे affiliation norms बहुत stringent है कि क्या उनकी basic capacity है, क्या उनका खुद का knowledge है कि नहीं है, क्या वो खुद trainer बनेंगे कि नहीं. इसीलिए पहले हम जो लोग experienced हैं उनको recognition और prior learning. इसका क्या मतलब है कि आपका जो prior experience and learning है उसको हम recognize करेंगे, पहले आपको certify करेंगे कि आप एक trainer बने, फिर आप फ्रेशर्स को ट्रेन कर पाए. ये एक बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क है. आज एक यूनिवर्सिटी कोई भी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री देती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा सर्टिफिकेट को लेके वो पूरे वर्ल्ड फोरम में क्लेम कर सकता है कि मेरे को ये नॉलेज आता है, राइट? तो वो एक यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी इंटरनेशनल सलोन्स भी आ रहे हैं, जैसे लूका पेलेटी अभी एक सलोन है इटालियन जो अभी ओपन हुआ है दिल्ली में, परसों ही उसका लॉन्च भी हुआ है. और जेसीबी है, बहुत सारे इंटरनेशनल सलोन्स आ रहे हैं. वहाँ आप जाएंगे तो वर्किंग स्टाफ जो होता है वो इंडियन ही होता है. आप कभी भी देखेगा इंडियन स्टाफ, दे आर वेरी गुड इन देयर आर्ट्स, वॉट एवर दे आर डूइंग. तो उनके पास जो सर्टिफिकेशंस हैं वो लोग इस तरह की चीज़ यहाँ आकर के देखते हैं क्या कि जो हमारे सलोन में काम करने वाला है वो सिर्फ एक्सपीरियंस देखते हैं और पिछले किस सलोन में उन्होंने काम किया है उस हिसाब से हायर करते हैं. तो ये डिग्री उनको किस तरह से हेल्प करेगी आगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. आप जैसे जो एक इंटरनेशनल लेवल के सलोन्स खुल रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टाफ मेंबर्स हैं, तो वो कुछ अपने सर्टिफिकेट्स करके आ रहे हैं, राइट? उनकी पोजीशनिंग, ब्रांडिंग अलग है. तो क्या हम उन क्वालिफिकेशंस, उन स्किल आउटकम्स को अपने इंडियन करिकुलम में डालें? और यहाँ के लोगों, जो आपने जैसे पॉइंट बोला कि लोग एक दूसरे सलोन में सीख के आया है, वहाँ अच्छा कर रहा है, वहाँ से उठा लो. बट क्या हम सर्टिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करें कि आज अगर एज अ यूनिवर्सिटी, एज एन अवार्डिंग बॉडी, एज ए सर्टिफिकेट अवार्डिंग बॉडी, आज अगर हमारे सर्टिफिकेट से एक बेंचमार्क बन जाए इंडस्ट्री में कि भाई अगर हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट किया है तब उसको इंडस्ट्री आंख बंद करके हायर कर ले. सो दैट बिकम्स अ क्रेडिबिलिटी, राइट? या whatever initiative we all are discussing right now at this platform, I think for this, everybody related to this industry has to join hands. And if we work together without thinking of our individual benefits, which are temporary and short-lived, I think that's when we'll be able to standardize every point of contact we were discussing since last. Absolutely. Raman, if you could quickly answer ma'am's question. Yes. Okay, so your question was, will freelancers ruin the industry? My answer is no, and let me tell you why. We've been around for 8 years, and when we first started, my business partner Nikhil is right there. We have spoken to many salon owners, large salon owners that own 50 to 100 to 200 locations pan-India.
And we've spoken to the small salon owners as well. We get phone calls on a daily basis. But we have never encountered a salon owner that wants to invest in the knowledge and the skill of their employee. We're yet to meet that, which is so disheartening in India, I'll be very honest. And we didn't touch on any of the topics we really wanted to talk about today, how to retain good employees. That's one way of salon owners actually investing. So now salon owners do not invest. That's what we've discovered over the last 8 years. We do not want to do that. Fine. But then how do we make room for new services happening at our salons? It's the only way is through freelancing and sharing commissions then, right? I'm yet to meet a salon owner that wants to truly invest because they're too afraid they'll be poached and they'll go somewhere else. Retaining employees in India is very hard, and we haven't even touched on anything. And Yes. to be honest, that was the whole purpose of this panel. And education and all that's great, but how do we retain? Because no salon owner in India wants to invest 2 lakhs in an employee. Nobody does. Because permanent makeup is a demand of an art this time. Yeah, it's a booming. Yeah. Okay. Because when I visited one salon in Delhi, only in Salak City Walk, the Look Salon, it's the biggest salon there for the nail service. There was written "Love for Nail," means they are doing nail job. I asked, "Do you do eyelashes?" They said yes. I mean, it's not written here. Why not love for nails and lashes? It should be like that. It was a suggestion from my side. I wrote in the diary. It should be like that. Then only people will come to know that we are doing this. I agree. And we've been talking about unity. We've been talking about how do we come together. And so opening our doors to freelancers is a good way to introduce new services at salons. Because now in India, so what I see as an outsider, we do great job at nails. We do great job at hair. And we're starting to do a good job on lashes. We are not there yet. However, we don't want to train our employees. We want to find freelancers again, right? Because no one wants to invest here. So we really need to show up as salon owners and start investing in our employees. And that will ensure that they stick around longer. We retain them for 3 to 5 years rather than every 6-month turnover, because that's getting tough. One suggestion from my side, you can follow L'Oreal for that. They, when they came to India, they came with education. So like putting their product in any salon, they were educating people, the salon owners and the employees and the artists over there. So same you can also do. You can train the salon people over there. Don't take money for that. Give them your product. So I think that will be... So semi-permanent makeup's very different, just quickly. Products are very specialized. So I don't want to own a semi-permanent makeup product. We are only in the industry of training, and that's how we showed up. Products with semi-permanent makeup are very, very selective. And it's not as easy as selling a product and doing the training. So this is where India's got it a little bit backwards as well. L'Oreal does a great job, but I'm not in the industry of selling products. I'm in the industry of educating and creating artists that do a fantastic job and understand the art and the science. It comes together of semi-permanent makeup. So it's a bit different. Right. Thank you so much for touching on the topic of retaining staff. Yes, it was supposed to be up for discussion, but we got carried away with education. Yes, Neha, final closing line because I'm running into lunch hour Yeah, here. because even I would love to talk about retention, and this is one topic which is, I think, untouched today Yeah. and very rightly mentioned by Raman. This is the biggest challenge with, I think, every business house now, not just salons, but be it a restaurant, be it a school, be it a salon, hiring the right kind of person for the right job and maintaining that staff for a longer period of time. Retention is a task. But I think what she rightly mentioned and why I was continuously asking about education in the first half was this, that we are thinking of taking the career graph of our individual employees in a different direction by educating them, by investing in their education and being a part of their career journey. If we become a part of their career journey, their sense of belongingness, ownership with the brand, trust, understanding their well-being and growth along with your growth as a brand. I think if we start looking forward in that direction, then probably retention won't be that difficult. And
the biggest act of poaching, I think, will be very Yes. difficult, because you will be gaining some loyalty from your employees in the long run. Yes, that's fingers crossed to that. And with that, we come to an end to this panel. Can we have a round of applause for our impressive panelists who have been giving us insights into the entire topic? Raman, can you please step forward? I would like to give you a memento from us. Can we have a round of applause for our speakers here? What a wealth of information and knowledge we gained out of them today. I request all my speakers to head to the VIP lounge for my team to take care of you there. And all my attendees, please come back at 2:30. We will start with our post-lunch session. Kindly speak with the catering staff here for your refreshment pack, and be back in the hall at 2:30 p.m. for our next session. हम सब कोई भी फॉर्म फिल करते वक्त या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशंस का पार्ट है जो मिस कर जाते हैं, जो स्किप कर जाते हैं, उन्हीं सब डिटेल्स पे, उन्हीं सब लीगल मैटर्स पे अगला डिस्कशन होगा. सो डोंट मिस इट. प्लीज कम बैक फॉर सलोन मैनेजमेंट कांग्रेस दिल्ली 2024 at 2:30 p.m. Thank you.